اگر ہم اور آپ اپنے اولاد کو فتنہ بننے سے روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اولاد کو فتنہ ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، تو اسی آیت کریمہ کی اسی حدیث کے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنے بچیوں کی پرورش کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، اسی بات کے اوپر ایک انسان کو عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کے اوپر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں پر لڑکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، وہاں پر اپنے بچیوں سے کہا جائے، اپنے بچیوں کو یہ حکم دیا جائے کہ اے میری بیٹیوں سن لو، ہم تو اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے وہ آدمی قرآن اور حدیث کے خلاف کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة أمتي المال۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے
کہ آج ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کا مقصد اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کے لیے اور کچھ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے۔ ایک طرف سے وہ لوگ مبارکبادی کے حقدار ہیں جو اس محفل میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو ابھی بھی محفل سے دور ہیں، ان کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک طرح کی بدقسمتی ہے کہ اس کے گاؤں کے اندر، اس کے قریے کے اندر، اس کی بستی کے اندر دین کی کچھ باتیں، قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں بتائی جا رہی ہو اور وہ اپنے گھروں سے مسجد کے دروازے تک نہ آ سکے، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ بہرحال میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، حدیث اور قرآنی آیت کے ضمن میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ اب سوال کوئی یہ کر سکتا ہے کہ فتنہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، فتنہ کہتے کسے ہیں؟ اردو کی اصطلاح میں فتنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز سے ایک انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو، اس چیز کے ارتکاب سے اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، ہر ایسے چیز کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم اور آپ جس دور کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جس دور کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہ دور قرب قیامت کا دور ہے اور فتنے سے بھرا ہوا دور ہے۔ آج ایک انسان اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فتنے معاشرے اور سماج کے اندر اس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے کہ ایک آدمی کے آگے فتنہ ہے، ایک آدمی کے پیچھے فتنہ ہے، ایک آدمی کے دائیں فتنہ ہے، ایک آدمی کے بائیں فتنہ ہے۔ گویا کہ سمجھ یہ لیا جائے کہ ایک آدمی فتنے سے گھرا ہوا ہے، اور فتنہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو فتنے میں ڈال کر کے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو، اپنے ان پرہیزگار بندوں کو، موحد بندوں کو جو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اتنا ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، ان لوگوں کو اتنا ہی فتنے میں ڈال کر کے اس کو آزماتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا، جس آیت کریمہ کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے،
الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے احسب الناس ان يتركوا، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، اے لوگوں کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے میں نہیں ڈالے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش سے دوچار نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے میں نہیں ڈالے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آگے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تمہارے سامنے فتنے کے دور کو بھی مسلط کریں گے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیونکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈال کر کے آزمائش میں ڈالا تھا اور ہم نے اس کا امتحان لیا تھا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں، ہم تمہیں فتنے میں اس لیے ڈالتے ہیں، ہم تمہارے سامنے فتنے میں مسلط کر کے ہم تمہیں اس لیے آزماتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو، ہم اپنے موحدوں کو، ہم اپنے ایمان والے بندوں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس لیے اس کے اوپر فتنے کے دور کو مسلط کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کے اندر آپ اندازہ لگائیں، آج اپنے سوسائٹی کا آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کتنے ایسے کرائم ہو رہے ہیں، کتنے ایسے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں جو فتنے کا شکل اختیار کر چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور معاشرے کے اندر جب فتنہ چھا جاتا ہے، جب معاشرے کے اندر فتنے کا بول بالا ہو جاتا ہے تو ایک آدمی نیک عمل کرنا، اس کے لیے نیکی کرنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ آدمی نیک عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی دور کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بادروا فی الاعمال فتنا، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، بادروا فی الاعمال فتنا، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اے لوگوں تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ بادروا فی الاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے سماج کے اوپر، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے کے اوپر فتنہ چھا جائے، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے کے اوپر فتنہ گر کر لے جائے اور فتنہ تمہارے سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لے۔ تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو،
इससे पहले कि फितना आ जाए और फितने का दौर जो है वो शुरू हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के आगे इरशाद फरमाते हैं, तक़ितइल लैलिल मुज़लिम, ऐ लोगों तुम नेकी करने में जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे मुआशरे के अंदर जब फितने का बोलबाला हो जाएगा, जब तुम्हारे मुआशरे के अंदर फितने का बोलबाला हो जाएगा और फितना तुम्हारे समाज के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, उस वक्त तुम नेक अमल नहीं कर सकते हो, क्योंकि फितना इस तरह छा जाएगा। तक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जिस तरह रात की तारीकी में अंधेरा छा जाता है, जिस तरह रात की तारीकी में अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे समाज के ऊपर फितने छा जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, जिस तरह एक इंसान रात की तारीकी में अपने घर से निकलता है, रात के अंधेरे में अपने घर से निकलता है, उस इंसान को कुछ दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि अंधेरे का गलबा रहता है। अंधेरे की गलबे की वजह से उस इंसान को कोई चीज दिखाई नहीं देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने का मिसाल अंधेरी रात से दे रहे हैं कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर फितने इस तरह छा जाएंगे जिस तरह अंधेरा मुआशरे के ऊपर छा जाता है। जब एक इंसान रात की तारीकी में अपने घर से निकलता है तो उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जब आसमान दुनिया की तरफ वो इंसान देखता है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फितने का इस तरह बोलबाला हो जाएगा समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, कि तुम्हें ईमान की रोशनी नजर ही नहीं आएगी, तुम ईमान की रोशनी को नहीं पहचान पाओगे, तुम ईमान की रोशनी को देख नहीं पाओगे। इस तरह फितने का बोलबाला हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के आगे बयान करते हैं और इसी हदीस के आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि फितने का इस तरह बोलबाला होगा, फितने इस तरह अपनी जड़ें समाज के अंदर जो है मजबूत कर चुका होगा कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। एक इंसान सुबह तो मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। इस तरह फितने का बोलबाला समाज और मुआशरे के अंदर हो जाएगा कि एक इंसान शाम के वक्त जो है, सुबह के वक्त मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा, वो अपने ईमान का सौदा कर लेगा। वयुमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, रात में मोमिन होगा लेकिन सुबह होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर ईमान की वैलिडिटी जो है 12 घंटा बता रहे हैं। सुबह वो आदमी मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप इसी दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर अलग तरीके के फितने छाए हुए हैं, चाहे वो फितना शिर्क का फितना हो, चाहे वो फितना बेपर्दगी का फितना हो, चाहे वो फितना हराम खोरी का फितना हो, चाहे वो फितना हराम तरीके से दौलत को हासिल करने का फितना हो, चाहे वो फितना इर्तिदाल का फितना हो, चाहे वो फितना गिबत का फितना हो, चाहे वो फितना जो है रियाकारी का फितना हो। आज मुआशरे के अंदर जितनी भी जरासीम पाए जा रहे हैं, सारी की सारी जरासीम जो है वो फितने का शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरे अजीज साथियों, अगर इन फितनों का इलाज सही वक्त पर न किया जाए तो यही फितने एक दिन एक इंसान को काफिर करके छोड़ेगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। सुबह तो वो इंसान मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसका सामना ऐसे फितने से हो चुका होगा, उसका सामना ऐसे फितने से हो चुका होगा कि उस फितने से वो इंसान बच नहीं पाएगा और अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा और अपने ईमान को बेच डालेगा और वो आदमी मोमिन से काफिर हो जाएगा। सुबह वो इंसान मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। मुआशरे के अंदर
कई तरह के फितने हैं। किस फितने के ऊपर गुफ्तगू किया जाए और किस जरासीम के ऊपर तबसरा किया जाए और किस फितने के ऊपर जो है गुफ्तगू किया जाए। मेरे अजीज साथियों, आज जो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ा फितना जो है वो शिर्क का फितना है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, ये फितना नहीं तो और क्या है। जिस मुसलमान के बारे में जो है आज दुनिया वाले इंसान कहते हैं कि मुसलमान शिर्क नहीं करता है, आज अपने समाज और मुआशरे का जायजा ले और अपने समाज का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। कितने ऐसे घराने आपको मिलेंगे कि जिसके घरों के अंदर शिर्क का बोलबाला है। कितने घराने ऐसे हैं जहां पर शिर्क जैसे गिलाजत और शिर्क जैसे घिनौने काम का इर्तिकाब किया जाता है। मेरे अजीज साथियों, आप इस आयत करीमा से शिर्क के फितने का अंदाजा लगाएं। इस आयत करीमा से शिर्क के फितने का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है सूरह अनआम के अंदर 18 अंबिया का तज़किरा किया। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशा। इस आयत करीमा के अंदर जो है अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलसल लगातार 3-4 आयत करीमा के अंदर 18 अंबिया का तज़किरा किया है। 18 अंबिया के नामों का तज़किरा किया है और इन अंबिया का तज़किरा करने के बाद आखिर में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ दुनिया के अंदर शिर्क के कामों का इर्तिकाब करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर शिर्क की गिलाजत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर शिर्क का बोलबाला करने वाले लोगों, सुन लो वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये अंबिया जिसका तज़किरा मैंने ऊपर किया है, अगर ये अंबिया भी शिर्क करते, अगर ये लोग भी अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा करते, अगर ये लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला को अपना हाजत रवा मानने से इनकार कर देते, अपना मुश्किल कुशा मानने से इनकार कर देते, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, तो हम इनके नामाए आमाल को बर्बाद कर देते, हम इनकी नेकियों को बर्बाद कर देते अगर ये लोग भी शिर्क का इर्तिकाब करते। मेरे अजीज साथियों, शिर्क के फितने का अंदाजा लगाए, शिर्क के हवल्ला की का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के बारे में कह रहा है, अपने जो है अंबिया के बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में हमारा ईमान है, जिसके बारे में हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को सजा नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपने अंबिया के लिए जन्नत के अंदर बाला खाना तैयार करके रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपने नबियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर महल तामीर करके रखा है। ऐसे नबियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर ये लोग भी शिर्क के कामों का इर्तिकाब करते तो हम इसकी नेकियों को भी बर्बाद कर देते, हम इसकी नेकियों को गारत कर देते और हम इसके नामे आमाल को तबाह बर्बाद करके रख देते। ये शिर्क की हवलना की है और ये शिर्क का फितना है जिन चीजों में आज हमारा मुआशरा लथपथ है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया का तज़किरा किया। एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मेरे नबी लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर आप भी शिर्क का इर्तिकाब कर लेते, अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर आप भी शिर्क के कामों का इर्तिकाब करते तो हम आपके नामे आमाल को भी बर्बाद कर देते और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाते। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर आप भी शिर्क के कामों का इर्तिकाब कर लेते
تو ہم آپ کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اگر آپ بھی شرک کے کاموں کا ارتکاب کر لیتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بیماریوں میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور ان سے بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کرنا، اگر آپ بھی اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتے تو ہم آپ کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ شرک کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم آپ کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کی روشنی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، اپنی آخری وقت میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشانی کی حالت میں، جاکونی کے عالم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں، اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاکونی کے عالم میں، آخری وقت میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اللہم انی علی غمرات الموت، پروردگار عالم موت کی سختی میں میری مدد فرما، موت کی سختی میں میری مدد فرما، موت کی بے ہوشی میں میری مدد فرما۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کے اوپر جو ہے لعنت کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہودی والنصارہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لعنت تو یہودیوں اور نصارہ کے اوپر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس شرک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر جو ہے چڑھاوا چڑھانے کی جگہ بنا لیا۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو جو ہے ان لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اور بد دعا کر رہے ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے انتقال کر جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، پروردگار عالم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو شرک سے روک رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی اپنے قبر کو جو ہے سجدہ گاہ بنانے سے انکار کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شرک کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر ایک انسان اس فتنے میں پڑ جاتا ہے اور شرک کی کاموں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالی غارت کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے۔ جو آدمی شرک کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، جو آدمی شرک کی غلاظت میں پھنس جاتا ہے، تو ایک فتنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ اگر کہہ دیا جائے تو یہ بات بیزا نہیں ہوگی،
और वो फितना शिर्क का फितना है। ये फितना आज एक इंसान के घरों के अंदर जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। जरूरत इस बात की है कि आयत करीमा के ऊपर अमल किया जाए और हदीस नबवी को जो है अपने सामने रख करके एक अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब माना जाए और एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा किया जाए। कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए और कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, हम उसी अल्लाह तबारक व तआला से शिफा चाहेंगे और उसी अल्लाह तबारक व तआला से शिफा के लिए दुआ भी करेंगे। तो ये एक फितना है जो शिर्क का फितना है। दूसरा फितना माल और दौलत का फितना है। दूसरा फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़े फितनों में से एक फितना बनता हुआ जा रहा है, वो फितना माल और दौलत का फितना है। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी किया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करने वाले लोगों, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद ये तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर फितना है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अगर तुमने इस दुनिया के अंदर माल को हासिल किया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को अता किया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर औलाद भी अता किया, अगर इन दो चीजों को आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, अगर दौलत अल्लाह ने दी है और उन दौलतों को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यही दौलत तुम्हारे लिए फितना बनने वाली है, यही माल तुम्हारे लिए फितना बनने वाला है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत अता की है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की शक्ल में औलाद अता किया है, बेटी की शक्ल में औलाद अता किया है, अगर अपने औलाद को आपने सही तरीके से तरबियत नहीं की, तो यही औलाद आपके लिए फितना बनने वाला है, यही औलाद आपके लिए फितना बनने वाला है। अब यहां पर माल के फितने के ऊपर बाद में गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले औलाद के फितने के ऊपर आते हैं। आज समाज और मुआशरे का आप जायजा ले लें, अपने जो है राज्य या अपने मुल्क का जायजा ले लें, मुल्क हिंदुस्तान का जायजा ले लें। अगर विकिपीडिया की खबर को जो है अगर सही माना जाए, तो आप इर्तिदाद के फितने के ऊपर जब आप जो है न्यूज को पढ़ेंगे और उसके तबसरे को पढ़ेंगे इर्तिदाद के फितने के ऊपर, तो आपको पता चलेगा, विकिपीडिया का ये रिपोर्ट है कि 10 लाख से जायद इस्लामी बच्चियां और इस्लामी शहजादियां, जिन लोगों ने अपने इस्लामी जो है रविश को छोड़ करके, दीन इस्लाम को छोड़ करके हिंदुआना रस्म को इख्तियार कर लिया और हिंदुइज्म जैसे जो है मजहब को जो है उन लोगों ने फरोग देने का काम किया और दीन इस्लाम को छोड़ने का काम किया। मेरे अजीज साथियों, यही चीज जो है और यही औलाद जो है एक इंसान के लिए फितना बनता है, और यही चीज इर्तिदाद का फितना है। इर्तिदाद का फितना यानी मुर्तद का फितना, यानी इस्लाम से फिर जाने वाला फितना। एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही देता है, एक इंसान आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है, क़यामत के ऊपर ईमान है, तकदीर के ऊपर ईमान है, लेकिन उसके बाद एक इंसान इन सारी की सारी चीजों से इनकार कर देता है और हिंदुआना रस्म इख्तियार कर लेता है और हिंदुओं की तरफ चला जाता है, तो यही चीज इर्तिदाद यानी मुर्तद कहलाता है, यानी दीन इस्लाम से फिर जाना, इस्लाम को अलविदा कह देना। मेरे अजीज साथियों, आज मुआशरे के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ा फितना ये भी है, और वो फितना इर्तिदाद का फितना है। अगर हम और आप इस फितने से जो है निजात पाना चाहते हैं, तो हमें और आपको आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस के ऊपर गौर फिक्र करनी होगी, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकील डाल दिया गया हो, एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकील को डाल दिया गया हो, और उस नकील का लगाम एक इंसान के हाथ में थमा दिया गया हो, उस ऊंट की नकील का लगाम एक इंसान के हाथ में हो। अब वो आदमी
जिसके हाथ में उस ऊंट की नकील का लगाम है, वो आदमी अब ऊंट से जो काम चाहे करवा सकता है। अब वो ऊंट अपने मर्जी का मालिक नहीं है, अब वो ऊंट अपने मर्जी का मालिक नहीं है, क्योंकि उसके नाक में नकील को डाल दिया गया है और उस नकील का लगाम एक इंसान के हाथों में थमा दिया गया है। अब वो इंसान उस ऊंट को जहां पर चलने का हुक्म देगा वहीं पर वो ऊंट चल सकता है, जहां पर बैठने का हुक्म देगा वहीं पर वो ऊंट बैठ सकता है। बिल्कुल यही मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान के बारे में दे रहे हैं कि जब एक इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, जब एक इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर अपने कदम को रख देता है, तो समझ लीजिए कि उस इंसान के नाकों में भी नकील डाल दिया गया है और उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। कुरान और हदीस अब उस इंसान को जो रास्ता बताएगा, जिस रास्ते की तरफ जाने का हुक्म देगा, वो आदमी उसी रास्ते की तरफ जा सकता है, वो आदमी उसी रास्ते को इख्तियार कर सकता है जो रास्ता कुरान और हदीस उसे सही बताता है। वो आदमी अब उसी रास्ते के ऊपर चल सकता है। जो आदमी इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसके नाक में नकील डाल दिया गया हो और उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया हो। अब वो आदमी अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। अब कुरान और हदीस उस इंसान को जो रास्ता बताएगा उसी रास्ते पर वो इंसान चलेगा। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप अपने औलाद को फितना बनने से रोकना चाहते हैं, अगर हम अपने औलाद को फितना इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं, तो इसी आयत करीमा के इसी हदीस के ऊपर अमल करनी होगी। इसी हदीस को अपने सामने रखने के बाद अपने बच्चियों की परवरिश करनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं, इसी बात के ऊपर एक इंसान को अमल करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला के उस आयत करीमा के ऊपर जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चियों को पर्दा करने का हुक्म दिया है, जहां पर लड़कियों को अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया है, वहां पर अपने बच्चियों से कहा जाए, अपने बच्चियों को यह हुक्म दिया जाए कि ऐ मेरी बेटियों सुन लो, हम तो इस्लाम के दायरे के अंदर है और इस्लाम के ऊपर अमल करने वालों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाता है वो आदमी कुरान और हदीस के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। ऐ मेरी बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर पर्दे का हुक्म दे दिया है। जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलो तो अपने चेहरे के ऊपर पर्दे को डाल लिया करो। जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलो तो तुम पर्दे में मलबूस होकर के अपने घर से निकलो। ऐ मेरी बेटियों, जब तुम जो है दुनिया के अंदर मुआमलात करने के लिए जाओ, बाजार के अंदर मुआमलात करने के लिए जाओ, तो अपनी आवाज को जो है पस्त न रखा करो, अपनी आवाज को नर्म न रखा करो, अपनी आवाज में कड़ापन रखा करो। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप इसी हदीस के ऊपर और इसी आयत करीमा के तहत अगर हम और आप अपनी बेटियों की तरबियत करना शुरू कर देंगे, अपनी बेटियों की जो है परवरिश करना शुरू कर देंगे, उसी वक्त हम अपनी बेटियों को इर्तिदाद के फितने से बचा सकते हैं। उसी वक्त हम अपने बच्चियों को इर्तिदाद के फितने से रोक सकते हैं और इर्तिदाद के फितने से बचा सकते हैं। तो मेरे अजीज साथियों, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बताई है उसी के ऊपर हमें और आपको अमल करना है और उसी के तहत अपने बच्चियों की परवरिश करनी है और उनको जो है उसी के तहत अपनी बच्चियों को जो है इस्लाम के दायरे के अंदर रख करके उसकी परवरिश करनी है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर हमारी बच्चियां जो है इस्लामी तालीमात के मुताबिक परवरिश पाने के बावजूद भी आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद जैसे फितने के अंदर क्यों मुलव्विस है और हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आखिर ये वबा जो है कैसे फैल गई और कहां कमी रह गई कि आज हमारी बच्चियां जो है दीन इस्लाम को छोड़ करके हिंदुवाना रस्म इख्तियार कर रही है। मेरे अजीज साथियों, जब इसके ऊपर हम और आप गौर फिक्र करते हैं और जब इसके ऊपर ताइराना नजर दौड़ाते हैं तो हमें और आपको ये बात जो है रोजे रोशन की तरह आया और बयां हो जाती है कि आज हमारे घरों के अंदर
जो बदअमली फैली हुई है। यही वजह है कि आज हमारी बच्चियां जो है इर्तिदाद जैसे फितने का शिकार हो रही हैं। मेरे अजीज साथियों, कितने ऐसे घराने हैं, कितने ऐसे घराने आज अपने समाज और मुआशरे के अंदर मिलेंगे जिस घराने के अंदर एक भी नमाजी नहीं है, एक भी नमाजी नहीं है। उसके घर के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाप बेनमाजी है, माँ बेनमाजी है, भाई बेनमाजी है, बहन बेनमाजी है, फूफी बेनमाजी है, उनके पूरे के पूरे घराने नमाजी है। मेरे अजीज साथियों, जरा बताओ हम अपने बच्चियों को कैसे बावर कराएंगे, हम अपने औलाद को कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि हम मुसलमान हैं, हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, हमारे घर के अंदर शिर्क का बोलबाला है, हमारे घर के अंदर जो है हराम तरीके से रिज़्क आ रहा है, हमारे घर के अंदर हराम तरीके से दौलतें आ रही हैं। हमारे बच्चियां अगर समझे तो कैसे समझे कि ये हमारा घराना जो है वो मुस्लिम घराना है। हम अपने बच्चियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक कैसे परवरिश कर सकते हैं जब एक इंसान खुद बेनमाजी है, जब एक इंसान खुद नमाज ही नहीं पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी की तरफ इशारा किया कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इस आयत करीमा के अंदर एक इंसान को हुक्म दे रहा है कि सबसे पहले तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, सबसे पहले अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, उसके बाद अपने अहल अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। मेरे अजीज साथियों, आज एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, एक इंसान जब मस्जिद के मीनारे से आवाज देती है, जब मस्जिद के मीनारे से मुअज्जिन जो है हय्या अला सलाह की सदाएं बुलंद करती है, तो एक इंसान अपने घर के अंदर बैठा हुआ रह जाता है और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता है। उसके घर के अंदर जवान बेटा है, उसके घर के अंदर जवान बेटी है, जब वो इंसान खुद नमाज ही नहीं पढ़ता है तो अपने बेटे से भला कैसे कह सकता है कि मेरे बेटे आप नमाज को अदा करें। जब एक माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती है तो अपने बेटी से कैसे कह सकती है कि आप नमाज को कायम करें, आप नमाज को अदा करें। मेरे अजीज साथियों, यही कमियां है कि आज मुआशरे के अंदर इर्तिदाद का फितना बढ़ता हुआ जा रहा है, यही कमी है और यही वजह है कि आज हमारे घरों के अंदर बदअमली फैली हुई है। आज हमारे घर के अंदर जो बदअमली फैली हुई है, रीजन यही है कि आज हमारी बच्चियां इस्लाम को समझ नहीं पा रही है, इस्लामी तालीमात को समझ नहीं पा रही है। जब एक बच्ची जो है बालिग हो जाती है, उसी वक्त उसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का रुख करवा दिया जाता है। मकतब ना पढ़ी है और ना ही दीनी तालीमात से आरास्ता वो पैरास्ता हो रही है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, आखिर वो इस्लाम को समझेगी तो कहां से समझेगी, क्योंकि हमने उसे इस्लाम को समझने का मौका ही नहीं दिया, हमने उसको इस्लाम को समझाने की कोशिश ही नहीं की। और आज मुआशरे के अंदर, आज भी हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जिसके जरिया हम आज अपने घर की औरतों को जो है दीनी तालीम से रोशनास करा सके। मेरे अजीज साथियों, अगर अपने घर की औरतों को, अपने घर की बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास कराना चाहते हैं, दीनी तालीम से आगाह आरास्ता व पैरास्ता कराना चाहते हैं, तो मेरे अजीज साथियों, हमारे पास कोई ऐसा मंसूबा होनी चाहिए, कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसके जरिया हम अपने घर की औरतों तक जो है दीन की बातों को पहुंचा सके और दीनी तालीमात यानी कुरान और हदीस की बातों को पहुंचा सके। मेरे अजीज साथियों, एक रीजन तो घर के अंदर फैली हुई बदअमली है और दूसरा रीजन जो है वो ये है कि आज हमारे पास तालीम के लिए, आज हमारे पास कुरान और हदीस को माओ और बहनों तक पहुंचाने के लिए, इस्लामी शहजादियों तक पहुंचाने के लिए कोई मंसूबा और प्लानिंग नहीं है। मेरे अजीज साथियों, एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आज हमारी बच्चियां जो है इर्तिदाद के फितने का शिकार हो रही है, आज हमारी बच्चियां जो है वो मुर्तद हो रही है। मेरे अजीज साथियों, हमारे पास कोई ऐसा मंसूबा और हमारे पास कोई ऐसा प्लानिंग होनी चाहिए जिसके जरिया हम अपने बच्चों तक जो है दीनी तालीम को पहुंचा सके, जिसके जरिया हम जो है इस्लाम की जो है रोशन तालीमात को अपनी बच्चियों तक पहुंचा सके। मेरे अजीज साथियों, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा इदारा मौजूद है जिसके जरिया
हम अपने बच्चियों तक दीनी तालीम को पहुंचा सकते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपने बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दिला रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, कहीं ये वबा जो आज हमारे समाज के ऊपर फैली हुई है कि हम अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलाएंगे, हम अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपनी बच्चियों को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपनी बच्चियों को टीचर बनाएंगे और हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देने से दूर रख देते हैं। मेरे अजीज साथियों, कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है, जब एक इंसान अपने बच्चियों को आला तालीम के नाम पर, अपने बच्चियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के नाम पर जब दीनी तालीम से रोक देता है और जब दीनी तालीम हासिल करने से उसके रास्ते को अलग कर देता है, उसी वक्त एक इंसान का अकीदा बिगड़ता है और उसी वक्त से जब उसके पास दीनी तालीम नहीं होती है, उसी वक्त जो है औरतें बहकती है, हमारी बच्चियां बहकती है और इर्तिदाद के फितने की शिकार हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं एक मजमून से आपको समझाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो ये वबा जो है, ये फितना जो है, आज जिस मकाम पर है, आने वाले दिन में इससे ज्यादा और हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ये अपनी जड़ें मजबूत करेगी। आज अगर 10 बच्चियां इस्लाम को छोड़ी है, आज अगर 12 बच्चियां इस्लाम को छोड़ी है, तो आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारी बच्चियां जो है जोक दर जोक इस्लाम को छोड़ेगी, 20 बच्चियां इस्लाम को छोड़ेगी, 30 बच्चियां इस्लाम को छोड़ेगी, क्योंकि आज हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मेरे अजीज साथियों, एक मजमून के अंदर एक मजमून निगार लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं कलकत्ता से पटना के लिए सफर में निकला। एक मर्तबा मैं कलकत्ता से पटना के लिए सफर में निकला। इसी दौरान मैं ट्रेन के अंदर जाकर के बैठा और मैं अपने सामान को उनकी जगहों पर रखा। इतने में मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला शख्स, जिसके ऊपर इस्लामी लिबास जो है मलबूस है, वो इंसान अपनी एक बेटी को लेकर के उसी ट्रेन के अंदर दाखिल होता है, अपनी बेटी को लेकर के उसी ट्रेन के अंदर चढ़ता है और दाखिल होता है। वो इंसान मुझे देखता है और मुझे सलाम करता है। वो मजमून निगार लिखते हैं कि वो इंसान मेरे सामने आता है, वो आदमी मेरे सामने आता है और वो इंसान मुझे सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आदमी मेरे सामने आकर के मुझे सलाम करता है। सलाम करने के बाद वो आदमी मुझसे कहता है कि भाईजान, मैं अपनी बेटी को आला तालीम के लिए पटना भेज रहा हूं। ये मेरी बेटी है जो बुर्के में मलबूस है, जो पर्दे में मलबूस है। ये मेरी बेटी पटना जा रही है आला तालीम हासिल करने के लिए। पटना में ये हॉस्टल में रह करके जो है आला तालीम हासिल कर रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। मेरे अजीज साथियों, इस वाक़े को गौर से सुनो, इस मजमून को गौर से सुनो कि आज मुआशरे के अंदर इर्तिदाद का फितना कितना बढ़ चुका है। वो आदमी कहते हैं, वो मजमून निगार कहते हैं कि वो आदमी मुझसे कहता है, वो आदमी मुझसे कहता है कि ऐ मेरे भाई, मैं आपको जो है एक आलिम दीन समझ करके ये कह रहा हूं कि ये मेरी बेटी है, आप इसे पटना के रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना। ये मेरी बेटी पटना जा रही है, आप इसे पटना के रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना। वो आदमी, वो मजमून निगार कहता है कि जब वो आदमी मुझसे कहता है, मैं उसे एतमाद में लेता हूं और मैं उस इंसान को ये भरोसा दिलाता हूं, ये यकीन दिलाता हूं कि आप मुतमईन हो जाएं, मैं इसे पटना की रेलवे स्टेशन तक छोड़ दूंगा और जो है मैं इसकी पूरी हिफाजत के साथ वहां तक छोड़ूंगा। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं, इतने में वो इंसान खुश हो जाता है और स्टेशन से जो है निकल जाता है, ट्रेन से उतर जाता है और स्टेशन से निकल जाता है। कलकत्ता से वो ट्रेन निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद, कुछ स्टेशन दूर जाने के बाद मैंने देखा कि वो औरत जिस सीट के ऊपर बैठी हुई थी, वो बच्ची जो बुर्के में मलबूस है, जिस सीट के ऊपर बैठी हुई थी, उसके सामने वाला सीट जो है वो खाली पड़ा हुआ था।
एक दो स्टेशन के बाद मैंने देखा कि वहां पर एक मर्द आकर के बैठता है, एक नौजवान आकर के बैठता है जिसके हाथ में कड़ा पहना हुआ है, जिसके दूसरे हाथ में एक भगवा कलर का धागा बंधा हुआ है। वो आदमी उसी सीट के ऊपर आकर के बैठ जाता है जिस सीट के बिल्कुल सामने वो लड़की बैठी हुई थी, वो पर्दे में मलबूस लड़की बैठी हुई थी, वहीं पर आकर के वो मर्द आकर के बैठ जाता है। मैंने उस इंसान को देखा और मैं समझ गया कि ये इंसान संगी है, इसका ताल्लुक जो है वो हिंदुआना रस्म से है। वो आदमी आकर के बैठता है और कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि वो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देता है। वो पर्दे वाली लड़की और वो इंसान जिसके हाथ में कड़ा पहना हुआ है, जिसके हाथ में भगवा कलर का धागा बंधा हुआ है, वो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देता है और हंसना और जो है बातें करना शुरू कर देता है। मैं जो है उस इंसान को रोकने के लिए जाता हूं, मेरी बीवी भी मेरे साथ मौजूद थी, मेरी बीवी मुझे रोक देती है और मेरी बीवी कहती है कि शोहर सरताज, हो सकता है कि वो जो है जरूरी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, आपको इसके अंदर दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठ जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं और उस औरत को कुछ नहीं कहता, उस लड़की से कुछ नहीं कहता। और कुछ दूर जाने के बाद और कुछ स्टेशन के गुजर जाने के बाद मैं फिर से उसी लड़के को देखता हूं, उसी बच्ची को देखता हूं कि अब वो दोनों एक दूसरे से सरगोशियां करना शुरू कर देता है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुका है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं कि मेरा खून खोलना शुरू कर देता है। एक तो वो बच्ची जो है पर्दे के ऊपर मलबूस है, जिसके चेहरे के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, जो औरत जो है के अंदर मलबूस है, और एक दूसरा इंसान जिसका ताल्लुक जो है हिंदू से है, जिसके हाथ में कड़ा बंधा हुआ है, जिसके हाथ में धागा बांधा हुआ है, एक ऐसा इंसान उसे सरगोशियां करना शुरू कर देता है। मेरे अजीज साथियों, मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो बच्ची जो है अपने चेहरे से पर्दे को हटाती है, अपने चेहरे से जो है अपने पर्दे को हटा देती है और अपने निकाब को भी अपने जिस्म से उतार देती है और वो लड़की आम लिबास में आ जाती है। और जब मैं पटना के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मैंने उसी बच्ची को देखा कि उसी मर्द के साथ, उसी संगी के साथ उनके हाथों में हाथ डाल करके वो औरत जो है, वो लड़की जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है। मेरे अजीज साथियों, किस कदर भगवा लेप ठरप का जो है दौर चल रहा है, आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें। वो मजमून निगार कहते हैं कि मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो लड़की जो है उस लड़के के हाथों में हाथ डाल करके पटना के रेलवे स्टेशन से निकलती है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजों को देखने के बाद मेरे जहनों के अंदर एक ही डाउट आया और एक ही बात मेरे जहनों के अंदर आई, और वो बात ये है कि ए लड़की, काश तुम्हारे बाप का नंबर मेरे पास मौजूद होता, काश तुम्हारे बाप का नंबर मेरे पास मौजूद होगा। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें पटना के अंदर आला तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो यहाँ पर जो है इर्तिदाद के फितने में फंस चुकी है, मुर्तद हो चुकी है, यहाँ पर जो है अपने बाप के एतमाद को अपने पांव तले रोंद रही है। आला तालीम के नाम पर तुम्हारा बाप जो है तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजता है, और वो लड़की यहाँ पर इश्क और माशूकी कर रही है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान कहता है, वो मजमून निगार कहता है कि काश मेरे पास तुम्हारे बाप का नंबर मौजूद होता ताकि मैं तुम्हारी असलियत को तुम्हारे बाप तक पहुंचा पाता। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, जब उस बाप को पता चलेगा कि जिस बेटी को मैंने ट्रेन के अंदर जो है बुरके के अंदर जो है मलबूस करके बिठाया था, वही बेटी पटना के अंदर बेनकाब हो चुकी है, वही बेटी जो है पटना के अंदर आम लिबास में आ चुकी है, वही बेटी एक जो है हिंदू लड़के के साथ उनके हाथों में हाथ डाल करके बाहर निकल रही है। बताओ उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरेगा जब उसे पता चलेगा उसकी बेटी की असलियत। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अगर समाज और मुआशरे के अंदर अगर हमारे पास मंसूबा नहीं है, अगर हमारे पास कोई इदारा नहीं है जिस इदारे में अपनी बच्चियों को हम आला तालीम दे सके, अपने बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास करा सके, तो मेरे अजीज साथियों, अगर ये प्लानिंग नहीं है, अगर हमारे पास कोई इदारा नहीं है, अगर
अगर हमारे पास तालीम के लिए कोई सोर्स नहीं है तो याद रखना ये चीज भी हमारे लिए इर्तिदाद के फितने जो है बढ़ाने वाली है और इर्तिदाद के फितने को फरोग देने वाला है। इर्तिदाद के फितने को फरोग देने वाली चीज यही है कि आज हमारे पास कोई इदारा नहीं है जिस इदारे में पढ़ करके हमारी बेटियां जो है आला तालीम हासिल कर सके और बेहतरीन डिग्रियां हासिल कर सके, जिसके जरिया हमारी बेटियां जो है नौकरी कर सके। मेरे अजीज साथियों, तो ये एक रीजन जो है वो इर्तिदाद का फितना है। इर्तिदाद के फितने ने आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और जो है हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान है या फिर जो है बांग्लादेश है, इर्तिदाद के फितने ने जो है एक इंसान के दिलों के अंदर हलचल पैदा करके रख चुका है। आने वाले जो फितने, मौजूदा दौर के जो फितने हैं, उन फितनों में सर फहरिस्त जो है वो इर्तिदाद का फितना है। इस्लाम को और इस्लाम के फॉलो करने वाले लोगों को जिन फितनों ने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है, उन तकलीफ देने वाले फितनों में से एक फितना इर्तिदाद का फितना है। तो मेरे अजीज साथियों, इर्तिदाद के फितने से बचने के लिए हमारे पास जो भी प्लानिंग है, हमारे पास जो भी मंसूबा है, उस मंसूबे को अपनाने की कोशिश करें और उस प्लानिंग को जो है अपने समाज और मुआशरे के अंदर नाफिज करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं एक उसूल आपको बता दूं कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर हफ्तावारी एक ऐसा प्रोग्राम जरूरी है जिसके अंदर इलाके के उलमा को बुला जाए, दूर दराज से उलमा को नहीं बल्कि इलाके के अंदर जो उलमा है उनको बुला करके ऐसे दर्स रखवाया जाए और ऐसे प्रोग्राम जो है हफ्ते में जरूर करवाया जाए जिसके अंदर जो है औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम हो और औरतें भी उन दर्स को सुन सके। ये चीज हमारे घरों के अंदर जो फितने बर्पा होते हैं उन फितनों को रोक सकती है, अगर इस चीज को हम और आप अपने समाज के अंदर नाफिज कर लें। तो एक फितना इर्तिदाद का फितना है और दूसरा फितना शिर्क का फितना, तीसरा फितना जो है वो माल का फितना है। आज ये माल भी हमारे लिए फितना बन चुका है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना फितनत उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले जितने भी लोग आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम की तमाम लोगों को फितने में डाला है, उन तमाम के तमाम उम्मतियों को फितने में डाला है। फितना तो उम्मती अलमाल, और मेरी उम्मत के लिए फितना उसका माल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले उम्मतियों को फितने में डाला और उनको फितने से दो चार किया, और हमारे लिए फितना जो है, मेरी उम्मतियों के लिए फितना जो है वो माल है। फितना तो उम्मती अलमाल, मेरी उम्मतियों को जो है अल्लाह तबारक व तआला माल के जरिया फितने में डालेगा। आज अपने समाज का, मुआशरे का अंदाजा लगाए और अपने समाज के ऊपर तायराना नजर दौड़ाए। आज जो है माल हमारे लिए फितना बन चुका है। एक इंसान माल और दौलत की लालच में अपने ईमान को जो है बेच रहा है, अपने ईमान को जो है खरीदो फरोख्त कर रहा है, अपने ईमान को चंद टकों के लिए, अपने ईमान को चंद जो है रुपयों के लिए एक इंसान अपने ईमान को बेच रहा है। कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, जिसके पास दौलत को हासिल करने के लिए, जिसके पास माल को कमाने के लिए, जिसके पास रिस्क को हासिल करने के लिए हलाल रास्ता मौजूद था, लेकिन उन लोगों ने हराम तरीके के रास्ते को फौकियत दिया और हराम तरीके के रास्ते को चुना, क्योंकि हलाल रास्ते में उतनी दौलत में फरावानी नहीं थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने हराम तरीके को चुना और हलाल तरीके से जो रास्ता था उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मेरे अजीज साथियों, ये आज हमारे समाज और मुआशरे के लिए एक फितने का शक्ल इख्तियार कर चुका है, एक फितने का शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक इंसान दौलत की लालच में अल्लाह की इबादत से भी दूर है और एक इंसान दौलत की लालच
में हलाल और हराम में तमीज भी नहीं करता है। एक इंसान दौलत की लालच में हराम और हलाल रास्ते को सेलेक्ट करने में एक इंसान गौर व फिक्र नहीं करता। एक इंसान के पास चाहे जिस रास्ते से भी दौलत आ जाए, अगर हराम तरीके से आ रहा है तो उस पर भी वो इंसान लब्बैक कह रहा है और उसी रास्ते पर एक इंसान जो है चलना शुरू कर देता है। मेरे अजीज साथियों, आज समाज और मुआशरे के अंदर नौजवानों का एक बड़ा तबका जो है अपने हलाल रास्ते को छोड़ करके हराम तरीके से रिस्क को कमाने के लिए लगा हुआ है और हराम तरीके से रिस्क को हासिल करने के लिए लगा हुआ है, जिसके बारे में मैंने तज़किरा जो है एक जुमे के अंदर में आया था और इसका मैंने तज़किरा किया था कि नौजवानों के अंदर एक ये फितना जो है बड़ी जोर और शोर के साथ फैल रहा है कि उन्हें सट्टाबाजी जैसे एप्लीकेशनों के अंदर फंस करके एक इंसान दौलत को हासिल करना चाहता है। जुबा जैसे एप्लीकेशन के एक इंसान इंस्टॉल करके और उसे अपने मोबाइलों के अंदर डाउनलोड करके एक इंसान दौलत को हासिल करता है। मेरे अजीज साथियों, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वईद सुना दिया। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को खबरदार कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ए लोगों, ए दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वाले लोगों, ए मोमिनो, ए ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर जुबे को हराम कर दिया है, जुबे से कमाई हुई दौलत को भी हराम कर दिया है। अगर तुम जुबे से दौलत को हासिल कर रहे हो तो ये दौलत तुम्हारे लिए हराम है। अगर जो है सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशन से तुम मालदार बनने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये रास्ता तुम्हारे लिए हराम है और ये रास्ता तुम्हारे लिए फितना है। अगर तुम इस रास्ते से दौलत को हासिल कर रहे हो तो ये रास्ता तुम्हारे लिए फितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल का फितना जो है हमारे मुआशरे, हमारे उम्मतियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला माल के फितने से जो है फितने में हमारे उम्मतियों को मुब्तला करेगा और हमारे उम्मतियों को अल्लाह तबारक व तआला माल के फितने से दो चार करेगा। तो मेरे अजीज साथियों, एक फितना माल का फितना है और चौथा फितना जो है वो रियाकारी का फितना है। आज जो मुआशरे के अंदर जीता जागता उदाहरण है और जीता जागता जो फितना है उनमें से एक बड़ा फितना जो है वो रियाकारी का फितना है। आज समाज और मुआशरे के अंदर कोई भी इंसान अगर कोई नेक अमल करता है तो दुनिया वाले इंसानों को जो है दिखाने के लिए करता है। कोई इंसान अगर अल्लाह तबारक व तआला की राह में दौलतों को खर्च करता है, कोई इंसान अगर मस्जिद और मदारिस के अंदर अगर रुपये देता है और अगर ये सोच करके देता है ताकि दुनिया वाले इंसान हमें मालदार समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान हमें जो है सखी समझे, गनी समझे, तो इसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही चीज रिया है और ये छोटे शिर्क में से छोटे शिर्क की कैटेगरी में आता है, शिर्क असगर की कैटेगरी में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान लोगों को दिखाने के लिए नेकी करता है तो गोया कि वो इंसान शिर्क करता है। तो मेरे अजीज साथियों, अगर कोई इंसान शिर्क की जो है, अगर कोई इंसान जो है रियाकारी के फितने में अगर मुब्तला होता है तो ये चीज भी उस इंसान के लिए हवलनाकी का बाइस है। अगर कोई इंसान नेकी करता है और ये सोचता है कि दुनिया वाले इंसान हमें जो है मालदार समझे, हमें नेकोकार समझे, हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि दुनिया वाले इंसान नमाजी समझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका बदला कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ नहीं मिलने वाली है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर जो समझ करके अमल करता है उसका बदला उसी दुनिया के अंदर उसे मिल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर इसी रियाकारी के फितने के बारे में इशारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को अता किया होगा, जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर गनी बनाया होगा, जिस दुनिया के अंदर सखी बनाया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, उस इंसान से पूछेगा कि ऐ इंसान बता, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर माल और दौलत से नवाजा था, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर माल की फरावानी दुनिया के अंदर दिया था, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर सखी बनाया था, बताओ तुमने उस माल से दीन
اسلام کے لیے کیا کیا؟ تم نے اس مال کو دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی جب اس انسان سے سوال کرے گا، وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم، آپ نے مجھے دنیا کے اندر مالدار بنایا تھا، دنیا کے اندر مجھے جو ہے سخی بنایا تھا، دنیا کے اندر مجھے غنی بنایا تھا، پروردگار عالم میں نے اپنی دولت کو دین کی سربلندی کے لیے لٹا دیا، پروردگار عالم میں نے تو اپنی دولت کو جو ہے دین کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی دولت کو جو ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیا، میں نے تو اپنی دولت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر اپنی دولت کو اس لیے خرچ کیا تھا، تم نے دنیا کے اندر اپنی دولت کو اس لیے جو ہے خرچ کیا تھا، لٹایا تھا، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں مالدار سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں جو ہے غنی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں سخی سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے کہے گا کہ جا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے، جا، تم نے دنیا کے اندر جو سوچ کر کے تم نے اپنی دولت کو خرچ کیا تھا، اپنی دولت کو لٹایا تھا، تجھے دنیا کے اندر مالدار کہا بھی گیا، تمہیں دنیا کے اندر سخی سمجھا بھی گیا، تمہیں دنیا کے اندر مالدار کہا بھی گیا، تمہیں دنیا کے اندر غنی مانا بھی گیا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ریاکاری کے فتنے میں پڑ کر کے اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال کو جو ہے غارت کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہاں اس کا بدلہ نہیں ملنے والا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دوسرے ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہے طاقتوری عطا کیا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہٹا کٹا جو ہے نوجوان بنایا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر شجاع اور شجاعت دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا بتا، میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر پہلوان بنایا تھا، میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر طاقتور بنایا تھا، میں نے تو تمہیں دنیا کے اندر جو ہے طاقتور بنایا تھا، بتا تو نے اس طاقتوری سے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو اپنی جو ہے پہلوانی کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، اور دین کی سربلندی کے لیے میں تو میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے کہے گا، اس شہید انسان سے کہے گا کہ جا، کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میدان جنگ میں اس لیے لڑا اور اس لیے شہید ہوا تھا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں جری سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں طاقتور سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں پہلوان سمجھے۔ جا، تمہیں دنیا کے اندر پہلوان سمجھا بھی گیا، جا، تجھے دنیا کے اندر طاقتور سمجھا بھی گیا، تمہیں جو ہے ون مین آرمی سمجھا بھی گیا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بھی شہید کا بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تم نے جس چیز کے لیے جو ہے میدان جنگ کے اندر شہید ہوا تھا، جس چیز کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے تم نے میدان جنگ میں جو ہے تلواریں چلائی تھی، جس چیز کے لیے تم میدان جنگ میں جا کر کے لڑا تھا، وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی ہے، وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی ہے، تمہیں دنیا کے اندر طاقتور بھی سمجھا گیا، تمہیں دنیا کے اندر شہید بھی مانا گیا، تمہیں دنیا کے اندر جو ہے پہلوان بھی سمجھا گیا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ریاکاری کا جو فتنہ ہے، یہ بھی جو ہے ایک بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں نے فتنے کے تعلق سے جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا،
वो आज के दौर के अंदर सुलगता हुआ फितना है। और आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है ये सुलगता हुआ फितना है, जिस फितने से आज मुसलमान जो है दो चार है। आज मुस्लिम समाज के अंदर ये सारे के सारे फितने पाए जाते हैं। मैंने जो हदीस और जो आयतें आप लोगों के सामने पढ़ी है, इन आयतों के ऊपर आप लोग अमल करने की कोशिश करें और इस तरह के फितनों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें और इस तरह के फितने से अपने आप को रोकने की कोशिश करें। इसी तरह आज हमारे मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर बिदअत का भी एक फितना है। मुसलमानों के अंदर जो मुसलमान जो अहलुल हदीस अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस का आलम बरदार समझता है, आज ऐसे समाज और ऐसे मुआशरे के अंदर बिदअत का भी फितना जो है बड़ी जोर और शोर के साथ फैल रहा है। बिदअत जो है आज मुआशरे के अंदर बड़ी तेजी से आम हो रही है और ये फितना भी आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर फैल रहा है। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस तरह के फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें और आपको जो फितने आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर रूना